This video is going to be very important for those who are preparing for the UPSC Engineering Services Mains examination. Scoring in the prelims is easier, but when it comes to scoring in the mains, students feel it is difficult. Today, we will understand from the toppers, that is highest scorers of the all respective branches, how they scored and whether really it is difficult to score or it is a myth. So dear friends, with me are today 4 highest scorers of UPSC Engineering Services Examination 2022. Mr. Ishan Gautam, who is All India Rank 1, Civil Engineering. He had scored 441 marks out of 600, passed out from NIT Srinagar, and he was a classroom student of ESE. Second person with me is Mr. Ravi Agrawal, who has scored All India Rank 2 in Mechanical Engineering. His conventional, that is mains examination score is 424 out of 600. And he is from NIT Nagpur. Third person with me is Mr. Akhil Kumawat, All India Rank 1 in Electrical Engineering. His score is 449 in mains, passed out from MNIT Jaipur, and he was again a classroom course student of ESE. Fourth person is Mr. Nalla Lakshmi Venkatesh. He secured All India Rank 2 in Electronics and Communication Engineering. His score in mains examination is 381 out of 600. Passed out from Gayatri Vidyapeeth, Gayatri Vidya Parishad College of Engineering, Visakhapatnam. And he was tertiary and interview guidance program student. Dear friends, there is a myth that score in mains examination is very tough and it is difficult to get the good marks. But one thing I would like to share, which is a fact, that scoring in prelims is more difficult than scoring in mains examination. For instance, Ishan, who is topper of civil engineering, his prelims score was 294 out of the 500, whereas mains score was 441 out of 600. If you find the percentage score, it is more in the mains. Similarly, Ravi scored 281 marks in the prelims and 424 marks in the mains. So in prelims, the score ranges, high score, I'm talking about the high score, highest score ranges from 50 to 55% or maybe up to 58, 60%. But in mains, the highest score is going up to 75%. So in this video, our aim is to understand from the toppers which strategy they followed, how they wrote their answers, what is the best way to write the answers, how this accuracy matters, how to make diagram, how to write your answers in most effective manner in a given space which is provided in question come answer booklet series. So one by one I will take. First of all, thank you to all of you for joining in this session today. And my first question is from Ravi. This is a challenge to fit the answers. For example, space is limited and you have to complete your answer in the limited space. How you planned to write in the question come answer booklet series? What is your opinion? How to present your best answer? So firstly and foremost, UPSC provides sufficient space to write the answers. Whatever the space is provided is generally good enough, and if one can practice a lot, they can surely write it. But one thing has to be kept in mind that whenever we are attempting a problem, we have to be clear with the approach. Means if I read a problem, then I have to be clear in my mind that this is the way the solution has to be proceeded. If I'm clear with that, then only I'll attempt that question. Then the chances of mistakes is less. The space constraints will only be a problem when you attempt a problem wrongly in the first go. Otherwise, space is enough, sir. So mock test helped in that. Okay. Akhil, you secured rank 1. And my question from you is the 5 questions which you have to answer. How critical is to select 5 out of 8 and what trick you should follow? Because first and fifth question is compulsory. सर मैं जो मैंने
एक्चुअल एग्जाम में जो अप्रोच अपनाई थी, मैं वो उसके बारे में बताना चाहूंगा आपको। कि राइट। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो जैसे आपको पेपर दिया जाए तो आप तुरंत ना पेपर स्टार्ट मत कीजिए, थोड़ा 2-4 मिनट थोड़ा उसको एनालिसिस कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन तो हमें करने ही है। तो आप बाकी जो 6 क्वेश्चन है उसमें आपको तीन तीन क्वेश्चन कोई ना कोई निकालने हैं, और उसमें वो क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर स्कोर कर सको। तो हमें पहले उसमें देखना है कि हमें मतलब कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और मेरी अप्रोच स्टार्टिंग से ये रही है कि instead of going for the compulsory or mandatory questions, I start with those questions which are carrying 20 marks each. तो उसमें यही रहता है कि हमें एक सेट निकालना है, कि जैसे हमें पता है कि एक क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं या 4 पार्ट होते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन है जो जिसमें मुझे मैक्सिमम पार्ट आते हैं, या फिर मतलब मोस्टली एक एक या दो क्वेश्चन आपको तो मिल ही जाएंगे जिसमें आपको। आपने जब सेलेक्ट किए क्वेश्चन, तो अपने अपना जो आपने आंसर लिखे जब, तो उसमें आपने क्या ध्यान में रखा कि आपको सारे पार्ट आते हैं वो सेलेक्ट किए, ये जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन मोस्ट स्कोरिंग था? सर जैसे कि ऑलरेडी थोड़ा एग्जाम से पहले मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैं इतनी टेस्ट सीरीज दे चुका था और सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। तो मुझे पता था कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही आएगा जिसमें मुझे सारे पार्ट आते होंगे। तो सबसे पहले मैं वो फिगर आउट करने की कोशिश करता था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने पूरा अटेम्प्ट कर दिया 60 टू 60 मार्क्स का, तो इजीली 50 टू 55 स्कोर आ सकता है। सबसे पहली अप्रोच ये रहती थी कि वो क्वेश्चन को फिगर आउट किया जाए, तो अगर हम उसको जल्दी से जल्दी कर पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और देन फिर हम मैंडेटरी क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। Among all the branches, Akhil, आपका स्कोर मैक्सिमम था 449 in the written examination. This is the highest of all branches. तो दैट अकाउंट फॉर अराउंड 75%। तो आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था या कितना परसेंटेज अटेम्प्ट किया था? एंड व्हाट इज योर ओपिनियन कि मार्किंग 100% मिलती है या 90% मार्क्स मिले होंगे आपको, या कुछ स्केलिंग हुई होगी? सर मैंने जितना मुझे ध्यान है, मैंने पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के अराउंड 540 टू 550 का अटेम्प्ट किया था। 280 प्लस 270 इन बोथ पेपर्स। हम्म। और मैंने जब वापस मैं जब घर पे आया, तो 1-2 दिन बाद जब नीट इजी का जो आंसर की रिलीज हुआ, तब हम्म। मैंने थोड़ा उससे मिलाने का कोशिश किया कि एक रेंज बिठाई कि कितना नंबर आ सकता है। तो इनिशियली आई वाज थिंकिंग कि आई विल गेट अराउंड 400 टू 425। लाइक वो थोड़ा वेरी करता है, क्योंकि सिंस इट दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। सो लास्ट अटेम्प्ट से मैंने ये सीखा कि जब मैंने लास्ट अटेम्प्ट में दिया था, तो मैंने लास्ट टाइम 470 का अटेम्प्ट कर पाया था मैं। एंड द स्कोर आई गॉट इट वाज 352। एंड मैंने एक्सपेक्ट किया था 370 का। तो विच मीन्स कि ज्यादा ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। कि अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, अगर आपने पेपर ढंग से किया है, तो एक थोड़ी दिमाग में आ जाती है चीज की, हाँ मतलब स्कोर उतना आएगा नहीं आएगा, और आंसर की से ये चीज क्लियर हो जाती है कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं। तो उससे आप थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्कोर, +-10 15 का रेंज रहता है। तो मैंने वही किया, तो मुझे लगा कि 400 प्लस तो इजीली आएगा, और आई कैन गो टिल 420 और 430 एज वेल। बट वो काफी ज्यादा आ गया, तो उसकी वजह से उसका एक यही रीजन था कि जो मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, वो बहुत ही सही क्वेश्चन और बहुत सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, विच मीन्स कि वो वन ऑफ द इजीएस्ट भी कह सकते हैं आप, और वन ऑफ द स्कोरिंग भी कह सकते हैं। मैंने जब पेपर का एनालिसिस किया बाद में, जब मैंने सोल्यूशंस देखे, तो मैंने ये देखा कि जो जो 6 क्वेश्चंस रहते हैं अपार्ट फ्रॉम द 2 मैंडेटरी क्वेश्चन, तो उनमें हम्म। अगर हम थ्री थ्री इजिएस्ट क्वेश्चन का सेट लेंगे ना, तो वो हम्म। मैंने दोनों पेपर में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसकी हम्म। वजह से मैं मैक्सिमम भी अटेम्प्ट कर पाया। और बेसिकली देखा जाए तो मैंने सिर्फ पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मैंने सिर्फ वही छोड़ा जो मुझे नहीं आ रहा था, और वो सारा जो पार्ट था वो था मैंडेटरी क्वेश्चन में। मैंने आपके पेपर केस में वन में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे दिखाई दे रही है कि यू अटेम्प्टेड अराउंड 550 560 एंड यू गॉट 450 अराउंड 449, विच इज अराउंड 82%। अब 82% मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब इन मेनी क्वेश्चंस यू कुड हैव गॉट 100%। कुछ जो थ्योरी क्वेश्चंस रहे होंगे, दो विच रिक्वायर थ्योरेटिकल आंसर, उसमें मार्क्स थोड़ा हो सकता है 70% मिले हो, 65% मिले हो, या यस सर। 80%। सो इट फील्स लाइक कि किसी किसी आंसर में तो 90 to 100% मार्क्स मिलते हैं, एंड दोज आर मे बी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, आपने अपने स्टेप्स सही लिखे हैं। ओके वेंकटेश, आई विल टेक इट फ्रॉम यू। So, Okay. Venkatesh, you scored 381, and in electronics, scoring is always difficult. We have seen in last couple of years, the score in electronics is less as compared to the other branches. So, how much you attempted and how much you could score? I have attempted around 440 marks, sir, and from them I thought I will be getting around 390. So finally I have secured 381. So, And you attempted 440 and you got yes, sir. 381. Yes, And this
itself shows that this score is of around 88%, 87%. Yes. It means that in many questions you have got 100% marks. Yes, sir. Mostly, most of the numerical questions, I think I might have got 100%, and theoretical questions, it might be around 80, 70%. Okay. So one question which I raised from Ravi, how to select best 5 questions. What was your strategy to select 5 questions out of 8? सर उसमें एग्जाम में से ज़्यादा टाइम होता नहीं है सोचने का। तो अमरिंदर सर से भी जब बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि एग्जाम में आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं जो आपके पहले देखे हुए हैं कहीं, आप जैसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो क्वेश्चंस में सर पहले जो इनिशियली 10-15 मिनट जो हम पेपर स्कैन करते हैं, तो उसमें वही फोकस था कि कौन कौन से क्वेश्चंस इजीली डुएबल है, हमने कहीं देखे हैं। उसका फिर सेट बनाया कि 3 क्वेश्चंस में से वो क्वेश्चंस कितने सारे हैं। उसके बाद उनको मार्क कर लिया पहले। उसके बाद थ्योरी क्वेश्चंस और डेरिवेशंस जो एकदम स्टैटिक पार्ट है, जो आपको एज इट इज आप मेमोराइज करते हैं और आप उसको एग्जाम में देख के आते हैं, उनको सेकंड प्रायोरिटी मार्क किया। और फिर वो देखा कि किस क्वेश्चंस में इन दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहा है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया सर। क्योंकि सर न्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना एक तरह से सुसाइड केस हो जाता है एग्जाम में। तो जिन चीजों से आप एकदम वेल अवेयर हैं अभी उससे, उनको सर अटेम्प्ट करना प्रायोरिटी समझा सर मैंने। Okay. Ishan, I would like to know from you, to score maximum marks, what strategy you followed? सर मैंने टेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया था इस बार सारे टाइम। 2022 में मैंने कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी नहीं ली थी। मतलब मेरा अप्रोच यही था कि इस बार, क्योंकि मैंने 21 में बहुत अच्छे से मेंस के लिए प्रिपरेशन ऑलरेडी की थी, अच्छे से नोट्स पढ़े थे, और ऑलरेडी एक बार मैं टेस्ट सीरीज में अपेयर हो चुका था। जब 22 में मैं आया तो मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज फॉलो की थी, और इस बार मैंने टेस्ट सीरीज के एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस किया था। अपार्ट फ्रॉम दोज 5 क्वेश्चंस जो टेस्ट सीरीज में हमको करने होते हैं, उसके अलावा भी मैं जो बाकी 8 क्वेश्चंस होते हैं, बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे हुए होते हैं, उन पे ही फोकस करता था। जो अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिलते थे उनको मैं अलग से नोट डाउन करता था कॉपी में। जो भी अलग कोई कॉन्सेप्ट सीखा या कुछ भी नया सीखा है तो उसको मैं नोट डाउन करता था। और मेन जो चीज़ है मेरे मार्क्स के पीछे, वो मैं यही बोलूँगा कि मेरी मेंस की प्रिपरेशन एक्चुअली 2020 से चालू थी। 2020 में मैं प्री में फेल हुआ था हालांकि, पर उसके बाद भी मैंने मेंस का बैच ज्वाइन किया था, और मैंने तभी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी कन्वेंशनल के लिए, क्योंकि मेरे को पता था कि कंसेप्ट में काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा इससे मेंस से। तो मैंने 2020 में भी टेस्ट सीरीज दी है, 21 में भी दी है, एंड 22 में भी दी है। तो मेरी मेंस की प्रिपरेशन बहुत लंबी रही है, और मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही था। That has resulted in score 441. यस सर। आपने कितना अटेम्प्ट किया था? How much you attempted and how much you got out सर of? इन पेपर 1 मेरा अटेम्प्ट 230 था। इस बार पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, जो पेपर 1 आया था सिविल का, तो उसमें ज्यादा मतलब हमको चॉइसेस थी नहीं, काफी क्वेश्चंस हमको आते ही नहीं थे, नए क्वेश्चंस थे, नए कॉन्सेप्ट्स थे। तो मैंने 230 अटेम्प्ट किया था, पर उसमें ये था कि सिंस काफी क्वेश्चंस अब एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ऑलमोस्ट 70-80 मार्क्स का पेपर जो आपको नहीं आता है, तो उनका जो टाइम सेव हुआ उधर से, कि वो तो नहीं आएगा तो नहीं, आसान हो गया सेलेक्ट करना। तो वो जो टाइम उधर से सेव हुआ, मैंने बाकी क्वेश्चंस को दिया ताकि उसमें एक्यूरेसी मेंटेन हो, कि मुझे पता था कि कम अटेम्प्ट होगा, तो पर जो किया है वो अगर अच्छे से हो जाएगा तो स्कोर बेनिफिट हो जाएगा इसमें। आपके केस में जैसे सेकंड पेपर में स्कोर आपका बहुत अच्छा है, 255। यस सर। और सेकंड पेपर हैज मोर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स देन द पेपर 1। मेन सीक्रेट तो कुछ भी नहीं है, मेन चीज ये थी कि पेपर 2 जो था इस बार सिविल का, वो ऑलमोस्ट जो मैं टेस्ट सीरीज देता था ऑलमोस्ट कॉपी हुआ है, वो 80-90% की टेस्ट सीरीज। हाँ सर, एग्जैक्ट उसमें कॉन्सेप्ट्स आए हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई है, तो वो काफी बेनिफिट करता है उससे। हाँ, अगर सिमिलर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है और टाइम भी कम लगता है। या वेंकटेश, माय क्वेश्चन फ्रॉम यू इज दैट हाउ डज हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स और द डिस्क्रिप्शन ऑफ आंसर matters? What is your opinion? How you have written? Yes, sir. When coming to handwriting, it should be legible to read. It should not be too much good, but someone should be able to read it clearly and understand it. And when coming to writing the descriptive answers, the space is limited. If you do something wrong while writing an answer, and if you strike it down, your space will be compromised. So for the first time itself, you should be very careful in what you are presenting, whatever points you are presenting in the answer, and also you should be presenting those points which are relevant to the question asked in the main.
that will be achieving you more marks. गुड। अखिल, एक चैलेंज आता है क्वेश्चंस में कि जैसे आपने आंसर लिखा और सपोज गलत हो गया, तो ऐसी स्थिति में अब वहां तो फिक्स्ड स्पेस है, तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, या इतना स्पेस होता है क्या कि एक बार आपने लिखा तो कट करके दोबारा लिख सकते हैं, इतना सफिशिएंट स्पेस रहता है क्या? सर 70 to 80% क्वेश्चंस में स्पेस ज्यादा ही रहता है। अच्छा, हाँ तो सर। इस तरह का चैलेंज नहीं आता, मतलब देयर इज हाँ सर। सफिशिएंट स्पेस। हाँ मतलब सर मुझे ध्यान है मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, तो उस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 3 to 4 पेजेस दिए हुए थे और वो क्वेश्चन 1.5 पेज में खत्म हो जाता, तो मैंने फर्स्ट पेज जो था वो पूरा गलत कर दिया था, बट स्टिल आई हैड इनफ स्पेस टू कंप्लीट इट, तो वो हो गया था। ओके, एंड वन मोर थिंग, लाइक जब आप आंसर लिखते हैं, सो समटाइम देयर आर डायग्राम्स, लाइक क्वेश्चन का आंसर बुकलेट में तो क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिंटेड है, and let us say there is a network questions or control system, the question may require a circuit diagram, तो whether it has to be redrawn, आपने दोबारा ड्रॉ करते थे या उसी क्वेश्चन में जो दे रखा है डायग्राम क्यू कैब में उसी में मार्क करके आगे प्रोसीड कर देते कैलकुलेशन? सर इसके लिए मैंने पहले मेडीजी के टीचर से भी पूछा था, तो उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया था कि आप जो इनिशियली जो डायग्राम दे रखा है अगर वो क्लियर है, अगर वो, तो आप कोशिश करिए कि उसी को यूज करें। जैसे अब मैं सर्किट डायग्राम की बात करूँ तो जैसे केसीएल होता है, किरचॉफ करंट लॉ जो हम लगाते हैं, या फिर हम मैश एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें जब उसमें हम शो कर सकते हैं, हम जो हमें जो डायग्राम गिवन है ऑलरेडी क्यू में, हम उसको यूज कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा बोला था। और मैंने इस बार एग्जाम में 2-3 बार मैंने डायग्राम को मैंने वापस रीड्रॉ नहीं किया, मैंने उसी में ही अपनी जो मार्किंग वगैरह थी वो करके मैंने कंटिन्यू किया क्वेश्चन। सर इससे ईशान, टाइम बचता ही एक तरह से, कोई ये नेसेसरी नहीं है कि आपको वापस बनाना है। राइट। Ravi, can you answer on this question कि whether your approach was to use the same diagram या separate diagrams ड्रॉ करते थे? सर मैकेनिकल में 90% केसेस में सर रीड्रॉ करना ही पड़ता है, और मैकेनिकल में सर मैक्सिमम न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो, सर खुद से डायग्राम ड्रॉ करने में आंसर में हेल्प ही होती है हमेशा। तो मैकेनिकल में सर कभी क्वेश्चन का डायग्राम यूज करने की सर कभी केस अभी तक सर ऐसा इनकाउंटर नहीं हुआ, तो खुद से ही ड्रॉ करना पड़ा सर हमेशा सेपरेट डायग्राम। Okay, right. And my question from Venkatesh is that is the time which is given 3 hours and the number of questions which you have to attempt, is that sufficient or one cannot attempt all the questions? The time is sufficient, sir, in order to attempt all the questions. Mostly if you choose numerical questions at the beginning, so you will be even having some extra time to answer questions, sir. Okay. And what about Akhil in say, electrical engineering? Time allotted is sufficient to answer all the 5 questions. Everyone can attempt, or a speed is required to be maintained right from beginning. सर इट अगेन डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। लाइक मैंने जब 2021 में दिया था तो पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट, तो उसमें इवन अटेम्प्टिंग 450 वाज गुड, क्योंकि उस पेपर में किसी का भी 400 प्लस स्कोर नहीं आया था, नॉट इवन द टॉपर। और जब सेकंड टाइम मैंने जब दिया तो डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा कम था, और इसकी वजह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी ज्यादा हुए। मेन क्या चैलेंजेस एग्जाम के टाइम पर फील होते हैं? वन, बिफोर द एग्जाम, ड्यूरिंग प्रिपरेशन, एंड सेकंड ड्यूरिंग द एग्जाम व्हेन यू आर राइटिंग इन दोस 3 आवर्स। तो क्या चैलेंज फील होते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? सर प्रिपरेशन के टाइम पे एक सबसे मेजर चैलेंज रहता है मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना, लाइक उसको अवॉइड करना, और जो मिस्टेक्स हो रही है उनको किसी तरह से सही करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि एग्जाम से वो मिस्टेक्स ना हो। जैसे कि एक मिस्टेक हो गई कि हमने क्वेश्चन ही मतलब क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एकदम से पैनिक मोड क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। तो हो सकता है कि उसकी वजह से जो क्वेश्चन है वो तो गलत हुई, क्या उसकी वजह से हम और आगे क्वेश्चन को अच्छे से ना अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि वो चीज़ बार बार दिमाग में चलती रहती है कि नहीं ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसकी वजह से टाइम वेस्ट हो गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हो उतना करिए, अपनी जो मिस्टेक्स है उनको एलिमिनेट करिए। Okay. Ishan, in civil engineering, paper 1 especially, there are some lengthy questions of structure, sometimes truss, frame, moment distribution, slope deflection. Do you feel that ki attempting these lengthy questions is advisable, or one should select theoretical questions from building material or from the other areas? No sir, actually I will advise to attempt those structural questions, क्योंकि उसमें ये है कि अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मार्क्स जो परसेंटेज स्कोर होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल क्वेश्चंस।
और कई लोग बोलते हैं कि उसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है, लाइक 30 मिनट्स लग जाते हैं एक स्ट्रक्चर के अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पर उसमें ये होता है कि अगर आप प्रैक्टिस पहले से करते हैं अच्छे से, मतलब हर तरह के, ऑलमोस्ट हर तरह के केसेस आपने देखे हुए होते हैं, जितने भी तरह के कंडीशंस होते हैं उसमें, सपोर्ट इंटरनल हिंजेस अगर कहीं पे है, सपोर्ट कहीं पे है, अगर हर तरह के क्वेश्चंस आप एक बार आप उनके थ्रू हो रखें तो उसके बाद आपको इतना टाइम एग्जाम में नहीं लगेगा। आप बार बार अगर वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो 30 मिनट्स का टाइम जो है आप रिड्यूस कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स में एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है स्ट्रक्चर का। और ज्यादा ध्यान ये रखना है कि स्ट्रक्चर में जो भी गलती होती है वो अगर आपने स्टार्टिंग में कर ली तो आगे तक वो कैरी फॉरवर्ड होती है। तो उसमें बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक भी मिस्टेक हुई तो आपको वो टाइम नहीं मिलेगा दोबारा कि आप वो क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट कर पाओ। And even the space may not be available. यस सर। तो ये And दो चीजों का ध्यान रखे तो स्ट्रक्चर के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे होते हैं सॉल्व करने के लिए। many students have one doubt कि whether there will be a step marking if I make a mistake in the last stage, my calculation mistake results in the wrong answer, will I get the marks or not? तो इसमें मैं सभी का ओपिनियन लेना चाहूंगा। रवि, what is your opinion on it? सर इसमें एक हार्श ट्रुथ ये है सर कि इसमें एक्यूरेसी डी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। तो इसमें फाइनल आंसर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमने मॉक टेस्ट में भी देखा है सर, और एक्चुअल एग्जाम में लास्ट ईयर भी जब मेंस में अपेयर हुआ था सर, जब मैंने कैलकुलेट किया था आंसर की से, तो ये चीज मैंने पाई है सर। मेंस में ये स्टेप मार्किंग तो होती है, बट वो क्वेश्चन का 20 या 30% होता है बस। अगर न्यूमेरिकल केस अगर आप लें। What is your opinion on the step marking? I think the procedure is more important, sir. If at the final step you have done something mistake, then you might be getting around 70 to 80% marks. But if the mistake is from the beginning itself, then it might get affected completely. Akhil? Sir, I totally agree with what Venkatesh has said. अगर mistake अगर in starting में हो जाएगी तो candidate will lose too much marks. अगर end में होती है तो बहुत कम marks Maybe 30% 40% marks मिल जाए या इतने डिडक्ट हो जाए। It all depends कि what kind of mistake you have done and at which level, means initial stage or final last stage. So it depends. Sometimes there is mistake in drawing the diagram. Maybe your calculation is correct. Sometimes your calculation value is wrong. Your formula is correct. Your steps are correct. So it depends ki what is the mistake. There is one question in every mind: how many hours should I prepare? How much should I study? So this is although very difficult, but Ishan, you told that you prepared for continuously 2 to 3 years for conventional. That is how you achieved your accuracy. But after prelims till mains, within these 3 to 4 months, how much time is required? सर मैंने कभी भी टाइम देख के मतलब पढ़ाई नहीं करी थी। मैं हमेशा अपना कंटेंट रखता था कि जैसे 6 दिन है, 6 दिन में मेरे को सब्जेक्ट करना है। तो अगर उस लंबा सब्जेक्ट है, टाइम ज्यादा भी लगता है, कहीं सब्जेक्ट जियोटेक है, एनवायरनमेंट है, वो कई बार 6 से 8 घंटे पर डे रिक्वायरमेंट होती है उनकी, तो वो उनको वो भी दिया है। बाकी कई बार जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, हाइड्रोलॉजी वगैरह जल्दी कवर होते हैं, तो उनमें कम टाइम भी लगता है। बाकी ऑन एन एवरेज 5 to 6 आवर्स स्टडी रहती है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट है। मेरा एक्चुअली काफी टाइम हो चुका था ऑलरेडी, तो मेरे को काफी थ्रू थे, मतलब नोट्स वगैरह हो गया, फॉर्मूलाज वगैरह हो गए, तो मैं ऑलरेडी उनके गो थ्रू हो चुका था। प्रीवियस ईयर मैंने काफी टाइम कर चुके थे, तो अभी 22 वाले अटेम्प्ट में मैं इतना टाइम नहीं दे पाया। बाकी उससे पहले जब मैंने प्रिपेयर करता था तो 6 hours at least is required per day. And how many years of previous year questions are essential? All sir. पूरी बुक लगा जाओ। Yes sir. Okay. And Ravi, in mechanical, which area you feel that these are very scoring? One should always attempt because you have to attempt 5, but area तो बहुत ज्यादा है, सिलेबस पूरा है। सर पेपर 1 में देखा जाए तो सर थर्मल पोर्शन काफी स्कोरिंग हो जाता है, और उसमें थर्मल सर अपने आप में करीब 70% 80% सिलेबस कवर कर देता है। तो अगर आप थर्मल में स्ट्रांग है तो आप समझ लीजिए कि आप एक काफी डिसेंट स्कोर आप पेपर 1 में ला सकते हैं। पेपर 2 में सर स्टॉर्म और टॉम जो है सर, थियरी ऑफ मशीन जो है, और मशीन डिजाइन स्पेशली सर, इन तीनों में सर वेरिएशंस लिमिटेड है क्वेश्चंस के। अगर आप प्रीवियस ईयर में फोकस करें तो आप सारे वेरिएशन से गो थ्रू कर सकते हैं, और ये काफी स्कोरिंग हो जाते हैं सर। इन तीनों में भी अगर मैं सिलेक्ट करूँ सर तो मशीन डिजाइन काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है सर, उसमें 2-3 ही वेरिएशन बन पाते हैं। Except in electrical, I find that score in paper 2 is more than score in paper 1. In civil,
in mechanical as well as in electronics. Is there any specific reason मैकेनिकल में पेपर 2 में स्कोर ज्यादा है आपका? तो मैकेनिकल में पेपर 2 में सर इस बार न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा आए थे, और जैसे मैंने कहा सर, न्यूमेरिकल्स अगर आपके राइट होते हैं तो 100% मतलब काफी हाई चांसेस होते हैं कि आपको फुल मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे। और पेपर 1 में सर इस बार काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे सर, इस वजह से सर मेरा ऐसा मानना है कि आप लगभग सभी के स्कोर सर पेपर 2 में इस बार ज्यादा आए हैं सर, जबकि सर पहले ट्रेंड उल्टा होता था। Yes, surprisingly, I find in all branches, even in electrical, his score is almost same in paper 1 and paper 2. But in other branches, in paper 2, his score is much greater than the score in paper 1. Venkatesh, my question from you is, what do you say the best time management in 3 hours when you are writing this examination? How to begin and how to proceed? How much time you should give initially for reading? Yes, sir. I feel the initial 15 minutes should be dedicating it for reading the questions and understanding it. So then you can choose what questions you are going to attempt, and to what extent you know the answers to these questions. So for the first 15 minutes, you spend reading the question paper, and then generally what I do is I attempt the answers in the serial number itself, starting from 1 to the proceeding number. Okay. Ishan, my question from you is that how much is the importance of the practice test series and how much MEDG test series was close to the actual examination? अलॉट सर प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आएगा एक तो, और एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आएगा कि मेरी प्रिपरेशन हो गई है ऑलरेडी, और आपको दिखता है कि आपकी परफॉर्मेंस जब पेपर पे आती है टेस्ट सीरीज के थ्रू मार्क्स अच्छे होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम देने चाहते हो, वो है। और प्रैक्टिस तो होगी साथ में, जैसे मैंने अभी बताया कि पेपर 2 जो था इस बार का सिविल का, वो ऑलमोस्ट टेस्ट सीरीज जैसा ही था, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन उसमें देखा हुआ था, कोई भी क्वेश्चन एक दो अगर क्वेश्चन हटा दे तो उसके अलावा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि ये कहीं अलग आया है या कुछ नया कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा प्रैक्टिस जो मैंने की टेस्ट सीरीज के थ्रू, उसमें एक बेसिक जो चीज मेरे को लगी, कैलकुलेटर का यूज बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना आता है अच्छे से, कई क्वेश्चंस होते हैं हाइड्रोलॉजी में, सर्वेइंग में, जहाँ टेबल होती है और काफी ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है हाइड्रोग्राफ्स में, इनमें तो वहां पे अगर आप कैलकुलेटर का अच्छे से यूज करते हो, 991 EX मैंने यूज किया था, तो उससे काफी ज्यादा टाइम सेव होता है। जहाँ उसको क्वेश्चन 10 से 15 मिनट लेता है, वो 2 मिनट में सॉल्व हो गया, सारी टेबल के सारी कैलकुलेशन निकल के आ जाती है। तो वो चीज प्रैक्टिस के थ्रू ही आती है। यूनिट लोड मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, जिसमें इंटीग्रेशन करके हम वो करते हैं, डिफरेंशिएशन होता है उसमें लिमिट्स लगा के, तो वहां भी काफी ज्यादा यूज आता है। वो डायरेक्ट आप इक्वेशन कैलकुलेटर में डालो तो डायरेक्ट वो आंसर निकाल के देता है। तो ये जो चीजें हैं टाइम सेव करती हैं, जो आपको बाकी क्वेश्चंस में एक्यूरेसी के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस के थ्रू ही आती है, और ये सब चीजें मैंने टेस्ट के थ्रू ही सीखी है। Akhil, you also feel that the importance of the practice of calculator makes a difference in the performance? यस सर। सर कैलकुलेटर स्टार्टिंग से ही, मतलब आप अगर नॉर्मली भी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो भी वहीं से ही कैलकुलेटर का इम्पोर्टेंस ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको तो सही आपने से कौन सा कैलकुलेटर यूज करना किया? आना चाहिए। सर मैंने भी 991 ES और मेरे पास एक 100 MS भी था, दोनों यूज किए थे मैंने। अच्छा, 2 कैलकुलेटर लेकर के गए थे आप एग्जाम में? हाँ, एग्जाम में भी 2 लेके गया था, एक बैकअप। एक ना एक फियर रहता है ना दिमाग में कि कहीं एक की बैटरी ना खत्म हो जाए, तो एक हाँ सही। एक्स्ट्रा रखा, यू कांट अफोर्ड, दिस इज द वन अपॉर्चुनिटी एंड वन फॉर एवर। ये सर, बट फॉर द एग्जाम यूज द बेस्ट। जैसे अभी 991 ES है, वो काफी अच्छे फीचर्स है उसमें, तो एग्जाम में वो यूज किया। राइट। क्वेश्चन नंबर 1 and question number 5, there are sub questions and every question is compulsory to be attempted, subsections. What was the approach to start from question number 1, or you attempted those questions first in which you are most confident? Ravi? सर पेपर 1 में तो सर मोस्ट कॉन्फिडेंट ही बोलूंगा सर मैं। जिस क्वेश्चन में मोस्ट कॉन्फिडेंट, क्योंकि इनिशियली सर 15 मिनट्स, हाफ एन आवर एग्जाम को सर बहुत क्रूशियल होता है। उसमें अगर आप कॉन्फिडेंस आप बिल्ड भी कर सकते हो और थोड़ा डगमगा भी सकते हैं सर कॉन्फिडेंस। तो सर मेरा सेफ खेलता हूँ सर थोड़ा सा इसमें, कि जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है उनको सर पहले अटेम्प्ट करना सही रहता है सर। And Venkatesh, you followed the same process to attempt those questions first in which you are more confident, or you started from question number 1? Generally, I have a habit of starting from question number 1, sir. Even if I don't know all the questions,
I used to know answer the questions which I know, and I used to skip. But Good. I do also suggest if someone has to start with a question, it's better to start with the question which he is confident. And my last question is that short notes, are these required for mains examination, formulae and short notes, or conventional notes can help you in revision? Akhil? Yes sir, short notes definitely will help. Like short notes प्रीलिम्स मेंस दोनों में इम्पोर्टेंट रहता है. तो डिफरेंस ये है कि जैसे मेंस में तो हम लोग जैसे आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं तो एक उसका प्रैक्टिस रहता है, लेकिन मेंस में भी एक ऐसा रहता है कि सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं तो एंड मोमेंट पे या लास्ट 15 to 20 डेज जब हम वापस खोल के बैठते हैं तो पूरा एकदम से कन्वेंशनल नोट्स हम नहीं पढ़ सकते. तो मैं जस्ट ये फिगर आउट करता था कि जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें से कुछ ऐसे ऐसे चीजें ऐसे क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी मार्क कर लेता था कि जिससे काफी अच्छी लर्निंग हो रही है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो मैं भूल रहा हूँ और जो टेस्ट सीरीज में वापस रिपीट हो रही है, तो मैं उनको अलग से सेपरेटली या तो आइदर आई यूज्ड टू मार्क इन द लेक्चर और या फिर मैं उसको अलग से सेपरेटली लिख लेता था पेपर पे. Ravi, you felt the importance of the short notes? यस सर, डेफिनेटली सर. मेंस में शॉर्ट नोट सर काफी हेल्प कर जाता है सर. जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सर जो हुआ सेकंड अटेम्प्ट में शॉर्ट नोट से काफी कंफर्ट जोन आ जाता है. जैसे थर्मोडायनामिक्स अखिल ने भी कहा सर कि काफी वाइड सिलेबस होता है, उसको एक बार में रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है. तो थर्मोडायनामिक्स फॉर एग्जांपल सर हम लेआउट बना लेते हैं कि भाई किस वैरायटी क्वेश्चंस बन सकते हैं. सिमिलरली आरएसी में सर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो सारे वैरायटी में नोट कर लेता था 20 बुलेट पॉइंट्स में कि इस क्वेश्चन में ये वैरायटी थी, इस क्वेश्चन में ये वैरायटी थी. तो बार बार सर उन क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं थी सर, बस वो बुलेट पॉइंट्स याद हो जाते थे तो सारी वैरायटी रिवाइज हो जाती थी. तो उस हिसाब से सर जहाँ पे भी आपको फील है कि आप शॉर्ट टाइम पे कर सकते हैं वो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, तो काफी हेल्प होती है. Ishan, when you want to draw diagrams, do you use pencil or is simply pen, rough with pen, freehand sketching? Yes, sir. Venkatesh, what is your view on it? I also use pencil. I haven't used any pencil. एक लास्ट मेरी एक क्वेश्चन है. बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मेंस की तैयारी फिर शुरू करेंगे जब पहले प्रीलिम्स में हो जाएगा. बट आप लोगों का क्या ओपिनियन है? ईशान ने तो पहले ही मुझे बता दिया कि आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग राइट फ्रॉम 2020. तो आपका क्या ओपिनियन है कि शुड स्टूडेंट्स वेट टू क्लियर द प्रीलिम्स और दे शुड प्रिपेयर इवन अलोंग विद द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स? सर इसमें स्टूडेंट को सर जज करना है कि अगर वो मेंस बैच को अगर फुल यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर एक डिसेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन है तो दे शुड डेफिनेटली गो फॉर इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स. बट अगर उनको लगता है कि तैयारी में कमी है और टाइम देना चाहिए, इन दैट केस इट्स बेटर दैट दे क्लियर प्रीलिम्स फर्स्ट. सर एक डिसेंट लेवल थोड़ा चाहिए सर मेंस के लिए. अखिल, यू वांटेड टू ऐड एनीथिंग? यस सर, मेंस को स्टार्ट करने के लिए एक पूरा बेस लेवल चाहिए होता है, और मेंस जो है सिर्फ मेंस में हेल्प नहीं करता है, वो गेट को भी काफी बेनिफिट करता है, गेट में भी. तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पहले ही प्रिपरेशन हो जानी चाहिए मेंस की. और दूसरी चीज ये है कि आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको एग्जाम क्लियर करना ही है तो फिर आप वेट क्यों कर रहे हो, पहले ही कर लो, फिर इससे बढ़िया. And Venkatesh, you would like to add anything? I also agree with Akhil what Akhil had said, sir. Like if you have sufficient time, you start from mains preparation so that it will also help you in prelims. So dear friends, this was the discussion with the highest scorers of the Engineering Services 2022 in conventional exams, that is mains examination. I hope this discussion will help you to learn from the toppers. And few things I'm just recollecting out of the discussion, that one is practicing of the previous year questions is very essential. At least 15 to 20 years of the previous year questions you should practice. Give test series religiously, write all the tests, evaluate yourself, improve your skills, practice in writing the examination environment. So your approach should be similar to the actual exam approach. In test series, you have to follow the same approach. Thirdly, as Ishan said, calculator makes a difference. If you have a very good approach to use calculator, and then this has been agreed by the other members also. So calculator practice is required, which can definitely give you an advantage. Next is accuracy makes the importance. So rather than being in hurry, better that you follow the steps, be accurate, and reach to the final correct answer. That is important. Selection of question is very, very important. And as per the discussion I found, start from that question in which you are most important rather than starting from the question number one.
If you are confident in question 1, you start from 1. But important is that you should build up your confidence, as the Ravi rightly said, ki initially in 15-20 minutes, you have to develop confidence. You should not lose confidence. And that will happen when you have started from an easy question. So ye dhyan rakhna hai. Next, Akhil told, Ishan also told, Venkatesh also told, Ravi also. Everyone says that numerical questions give the more score than the theoretical questions. So dear friends, if you are more confident in numerical, better to attempt numerical questions as much as possible. Avoid the theoretical questions. But if you don't have choice, no problem. Overall, a combination which can give you the maximum marks is required. For that, before you start writing your answer, at least devote 15 minutes in reading the question paper. Choose which question will be your first, which will be your second attempt, which will be your third question to attempt. So first set your priority. These are my 5 questions which I will attempt, and which will be your first, which will be your second, and which will be your last question to be attempted. So these are the things which we discussed, and one thing which is very clear, there is no rocket science other than practice, and Made Easy test series helped a lot. Preparation for the mains examination definitely helps in every other exam, whether you are writing next attempt of the gate. I would like to add something. Yes, yes, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स स्पेशली, तो कन्वेंशनल का पेपर जो रहेगा उसमें डिजाइन के क्वेश्चंस जो होंगे, आरसीसी के हैं, स्टील के हैं, एनवायरनमेंट में काफी आता है डिजाइन के क्वेश्चंस। तो डिजाइन के क्वेश्चंस मैं बोलूंगा सबसे पहले अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें कोई एग्जैक्ट आंसर भी नहीं होता है न्यूमेरिकल, एक प्रोसेस होता है बस। तो अगर आप वो क्वेश्चंस पहले लेंगे तो सिर्फ आपके प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर आप सेफ स्ट्रक्चर या कुछ भी डिजाइन करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये सिविल के लिए एक बोनस पॉइंट था जो मेरे को अपने प्रिपरेशन के टाइम फील हुआ था। टेस्ट सीरीज में भी मैं हमेशा डिजाइन के क्वेश्चंस पहले करता था, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा ना दिमाग लगाना है, ना ज्यादा एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, सिर्फ गाइडलाइंस फॉलो करनी है और सीधा एक प्रोसेस फॉलो करके आंसर तक आना है। तो डिजाइन के क्वेश्चंस काफी बेनिफिशियल रहेंगे अगर अच्छा स्कोर करना है। Great. So thank you everyone for participating in today's discussion. This discussion will definitely help aspirants who are your juniors. They will learn from you, and we are proud of you, all of you. Thank you, Ravi. Thank you, Akhil. Thank you, Ishan, and thank you, Venkatesh. And last thing for students, please do make your short note. As everyone says, short notes help in prelims as well as in mains. So thank you, everyone.